السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ سید الخلق امام الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین تمسکوا بہذا الدین واصحابہ الغر الميامین الذين حملوا هذا الدين ورفعوا راية الإسلام موفقا إلى الأرجاء والعالمين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال علیہن قرار. محترم حضرات، آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس اہل حدیث کمپلیکس میں روز ہفتہ سنیچر 12 اکتوبر کو اس کے ہفتواری پروگرام میں شریک ہیں، اور جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ حیائی اس کے اسباب اور علاج، یہ بات بارہا آپ نے سنی ہوگی اور جانتے ہیں۔ پورے زمین پر اللہ شانوں نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بڑی تعداد کو بھیجا، نبیوں اور رسولوں۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی سعادت و فلاح اور اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں اور جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں ان سب کو بتانے کے لیے اور راہ حق پہ چلانے کے لیے انبیاء آئے تھے اور انہوں نے بتایا، اور جتنی چیزیں انسان کی قدر و منزلت میں کمی سے لے کر اس کو ہلاکت و گمراہی اور ناکامی کے انتہائی گڈھے پہ گرانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بچائیں، اور انسان جو اپنے عقل، دماغ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے احساس عطا کیے ہیں اور دیگر مخلوقات پر جو مزیت اور فضیلت بخشی ہے، اس پر بھی اسی کے ذریعے سے خیر و شر، بری اور اچھی چیزوں کے درمیان تمیز کریں، نفع اور نقصان کو پہچان کر کے نفع کو حاصل کرے اور نقصان سے بچیں۔ لیکن انسان ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے نسیان یعنی بھول چوک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ قوت بھی رکھی ہے اور یہ صفت بھی رکھی ہے کہ آپ بھول بھی جائیں، ہم سے چوک بھی ہو جائے اور ہم غلطیاں کر بیٹھیں، تو تنبیہ کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تیری مرضیات کو بتانے کے لیے ہماری عقل بہت چھوٹی تھی، ہم بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ سب سے بڑی دولت ہم کو حاصل لگی ہے، سب سے زیادہ میں آزادی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو وہی میری سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی غلامی کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کاش کہ تم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا ہوتا، ایسے لوگ ہوتے ہماری سوسائٹی میں تو ہم کو بتایا ہوتا، انہوں نے تنبیہ کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس حجت اور دلیل کو قائم کر کے کسی بھی ہیلے ساز کو، بہانے باز کو کسی طرح کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر پیش کرنے کے لیے انسان ہزاروں پیش کرے گا اور کر سکتا ہے، لیکن وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بہت سی برائیوں سے بچانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اس کے عواقب بد، اس کے برے انجام سے متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، مبشرین اور اچھی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنے اور ہمیشہ نفع میں رہے، اس کے لیے بشارت دینے والا ہے کہ لا یکون علی الناس حجہ، اللہ رب العزت والجلال کوئی دلیل ان کے لیے حجت نہ رہے کہ ہم لوگ یہ خبر نہیں پہنچے۔ رسول آ گئے تو سب ختم ہو گیا، بعد الرسل، یہ چیز اللہ اور رسول کے یہاں سے جو تھی، اسی لیے جو انسان بھی دنیا میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق چلے گا، وہی کامیاب ہو۔ اسی کے لیے سرخروئی وہ پچھتائے گا نہیں کبھی کہ ہمارا خاندان برباد ہو گیا، ہماری جماعت برباد ہو گئی، ہماری جمعیت برباد ہو گئی، ہمارا ملک برباد ہو گیا، ہماری قوم برباد ہو گئی، ہمارے طلبہ بے راہ ہو گئے، ہمارے بیٹے بد اخلاق ہو گئے، ہماری بیٹیاں جو سب سے قیمتی دولت کی وہ سب سے زیادہ بے راہ ہوگی۔ یہ وہ کہنے کی اس کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اسی طریقے سے اس کو موقع نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو بنانے کے بعد یہ اس کے لیے بڑا جتن کیا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد یہ ذمہ داری اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر ڈالی، عمومی طور پر یہ سارے مسلمان ہی ساری انسانیت کے لیے ان کے نفع و نقصان کے حقیقت میں ذمہ دار ہیں۔ تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، یہ تمہارے علاوہ جتنی دنیا میں آبادی ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، ایران کے، توران کے، افغانستان کے، امریکان کے، ہندوستان کے، سب کے لیے تم کو اللہ نے بنایا۔ رسول چلے گئے، اب وہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تو حیثیت عمومی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم بیچ والی درمیانی راہ چلنے والی امت ہو، یہ نہیں کہ تم پورے طور پر اتنے آزاد ہو جاؤ کہ نہ اللہ کے قانون کا، نہ اخلاقیات کا، نہ ایمانیات کا، نہ تہذیب و تمدن کا، نہ اپنے اور پرائے کا، کسی بھی طرح کے کسی بھی تمیز سے تم بے بہرا ہو جاؤ، یا اس قدر تم اپنے آپ کو جکڑ رکھو، اتنا اپنا دماغ بند رکھو، اس قدر سوسائٹی میں اپنے آپ کو محدود کر لو کہ دنیا کی قومیں کہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک پسماندگی کا شکار ہے، ہمارا ملک پیچھے ان کی وجہ سے، ہمارے پڑوسیوں کی وجہ سے ہماری سمسیایں، اور پرابلم کریٹ کرنے کا جو حقیقی وجہ ہے دنیا میں، وہ یہ لوگ ہیں جو کچھ جانتے نہیں، کچھ بوجھتے نہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو ہر معاملے میں یاد رکھنی چاہیے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو اللہ جل شانہ نے برابری کی بنیاد پر بنایا ہے، بلکہ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ وَخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا،
ऐ लोगों अल्लाह से डरो, दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक आदम से पैदा, देखने में वो एक मर्द थी, लेकिन उसके बाद दूसरी सीढ़ी आई, तो उसके बाद खलक़ मिनहा ज़ौज, अब नस्ल इंसानी क़यामत में जो भी चलेगी, किससे चलेगी? औरत और मर्द के बगैर नहीं चलेगी। और जो कहा जाता है कि जिंदगी एक गाड़ी है और इसको खींचना है, इसको दौड़ाना है, इसको चलाना है, इसको उड़ाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इस गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए, जिंदगी की गाड़ी। मर्द नहीं है तो ये गाड़ी नहीं चलती, नस्ल खत्म हो जाए। औरत नहीं है, कोई एक नहीं है, आपने देखा किसी मर्द को छोड़ करके कि उसके बाद कोई इंसान पैदा हो गया हो, और एक औरत को छोड़ करके बिना मर्द के कोई इंसान पैदा हो गया हो, ऐसा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामना को दिखाते हैं, तो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, इसके बगैर कोई निजाम दुनिया का चल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने दोनों को इंसान बनाने के बावजूद दोनों के एक सी तरफ पर पैदा करने के साथ ही दोनों के मिजाज, दोनों के जिस्मानी साथ, सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने बिल्कुल अलग बनाए, दोनों के काम अलग बनाए। अब इंसान इफरात और तफरीद का शिकार न हो तो फिर नाकामी नहीं। औरत के सिलसिले में सीधे अब आता हूं। औरत इस वक्त दुनिया में दो नजरिया, दो तरह से ये इफरात और तफरीद हुई, यानी असबाब क्या थी, उसमें से बुनियादें हम ढूंढेंगे कि औरत ये बेहयाई क्यों आई। बेहयाई से इसे तमाम अदियान के अंदर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारे अंबिया के हाथ था। कोई नबी ऐसे नहीं थे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की दावत नहीं। और दूसरी जो बुनियादी चीज थी वो किस चीज की दावत की? हया। तमाम अंबिया के यहाँ, तमाम बड़े इंसानों के यहाँ हया, शर्मिंदगी, उसके अंदर शर्म हया का होना, ये सबसे बड़ी उसके अखलाक की सबसे बड़ी चीज क्या थी? हया। शर्म हया जिसमें नहीं है, तो बात आई थी कि इंसान की सबसे बड़ा जौहर, सबसे बड़ी कीमती दौलत इंसान के अंदर क्या है? शर्म हया। लेकिन खास तौर पर जो सिनफे नाजुक है, जिसे औरत कहते हैं, जो पर्दे की चीज है, उसके लिए शर्म हया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। और तमाम अक़वाम में ये मुसल्लम रहा, तमाम अदियान में मुसल्लम रहा। इसीलिए तमाम नबियों के सबसे पुराने मक़ूले में यहाँ कुरान कहता है कि वो सबसे बड़ी दौलत क्या थी, सबसे बड़ा मिशन क्या था, सबसे बड़ी दावत क्या थी? या कौमी या कौमुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उनके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं अल्लाह। इसी तरीके से मिन कलामी अन्नुबुव्वा, मिन अव्वल कलाम अन्नुबुव्वा, नबूवत के पहले कलमे में से, पहली बातों में से तमाम नबियों के वो क्या है? अल-हया। क्या है? हया, शर्म और हया। ये सबसे बड़ा जौहर है इंसान के अंदर। और इसीलिए कहते हैं फसना माशे, जब हया नहीं है तो दुनिया का हर गंदा काम कर सकते हैं, हर जुल्म कर सकते हैं, और हर नाइंसाफी कर सकते हैं। अपनी जौहर, अपनी कीमत, अपनी दौलत जहां चाहे इस तरीके से उड़ा सकते हैं, और दुनिया का जो चाहे इंसान उसको लूट सकता है, उसको बुरी नजरें डाल सकता है, और वो अपना हक समझ सकता है। एक भी बड़ी चीज है हया। मैंने कभी कहा था कि अरब कहते हैं
فلما كانت مدینۃ كانت سمیرۃ، جب تک باحیات تھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی تھی عورت، کسی بھی خاندان میں کسی قوم میں كانت سمیرۃ، تو سوسائٹی سماج گھر خاندان کی ناک تھی اور وہ سب سے زیادہ ٹھیک تھی. فلما خانت فہانت، جیسے ہی انہوں نے حیا کی چادر اتار دی، جیسے ہی خیانت آنکھ کی کی یا جسم کا کیا یا وقت کا کیا، ماں باپ کا کیا، شوہر کا کیا، بھائی کا کیا، ملک ملت کا کیا، اسلام کا کیا، جس کے ساتھ بھی ذرہ برابر خیانت کی فہانت، تو اس سے زیادہ زمین پر کوئی ذلیل مخلوق نہیں، اس سے زیادہ ذلیل سوسائٹی کا کوئی انسان، نہ فقیر نہ غریب نہ چور نہ چنکا، کوئی بھی اتنا بڑا ذلیل و حقیر اور برا برا انسان نہیں مانا جائے گا کہ ایک عورت کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے اور وہ پھر بازار کی سوسائٹی کی سب سے سستی چیز ہے. ہماری سوسائٹی میں دو افراد تفریح، دو قسمیں بڑی بدترین قسم کی ہیں. ایک تو یہ ہے، اس کو غور سے سنیے، ہماری مائیں بہنیں بھی پورا غور سے سنیں اور ان کے گارجین، ان کے سرپرست، ان کے بھائی، ان کے اہل بھی سنیں. ایک تو یہ کہ عورتوں میں جہالت بہت زیادہ ہے، اور یہ جہالت مردوں کے سر پر بھی چڑھ کر کے جادو بن کر کے چلتی رہی. پہلی جہالت یہ تھی کہ عورت نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم ایک خاص محدود دائرے میں ہیں اور ایک میرا خاص وظیفہ ہے، یعنی گھر کے دائرے میں محدود ہو کر کے چند صرف کھانا پکانا اور ہم کو گھر کے اندر جہاں بیماری میں رہ کر کے صرف بچے پیدا کرنا اور شوہر اور گھر کے چند کام کاج کو دے کر کے اس کے بعد کوئی میرے اوپر نہ حق ہے، نہ میرے لیے کوئی آزادی ہے، نہ میں کچھ کر سکتی. نتیجہ کیا ہوا کہ مرد تو پہلے سے سب نہیں، لیکن کہیں جہالت کی بنیاد پر، کہیں علم کی بنیاد پر عیار ہوتا ہے، مکار ہے، یا بہت زیادہ وہ سادہ لو ہوتا ہے. اب اس مرد نے یہ سمجھا کہ سادہ لو کا کہ ہماری بچیوں کا، ہماری بیویوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ماؤں کا صرف لے کر کام یہ ہے کہ صبح شام کھانا پکائیں اور بچوں کی تربیت کا وہ مسئلہ نہیں کرتے، بچوں کو سنبھالیں. سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کسی اور چیز میں انٹرفیئر نہ کریں، ہمارا وقت بچے اور بچے کسی طریقے سے پروان چلتے بڑھ جائے، بس پڑھا دیا، جوان کر دیا، معاملہ چھٹی ہو گئی. یہ ان کی دیواری کے اندر جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا. اس کو یاد رکھیے. اور بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں. دوسری چیز کہ عورتوں نے جب گھر سے قدم نکالا اور علم کا گھرنا ان کو سوال تو سیدھے وہ اس پر آئی یا مرد ہمکاری سے ان کو یہاں لایا کہ دونوں زندگی کے دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی کے، تو اب عورت ہی مرد کے شانہ بشانہ ہم کسی سے کم نہیں ہو. اب جس طریقے سے مرد ہر میدان کا مرد کہلا رہا ہے، مرد میدان ہے، تو بھی ہر میدان کی کیا ہو، عورت نہیں ہو، وہاں تم مرد. اب وہ جو اپنی جنس بدل دے گا، جو اپنی حقیقت کو بھول جائے گا، تو کیا کرے گا؟ اب وہ بہت زیادہ اس کے حالات خراب ہو جائیں گے، وہ فطرت سے ہٹ رہا ہے. تو یہ عورتوں میں جب آزادی کی بات آئی کہ نہیں، ہم صرف گھر میں دھواں دھکول کرنے والی، گھر میں بند رہنے والی نہیں ہے، صرف بچوں کو کھلانے پلانے کا، دودھ پلانے کا وہ معاملہ نہیں ہے. تو اس سے ان کے اندر ایک طرح کی اور دنیا میں بہت سے لوگ جو حسن دین سے عاری تھے یا اسلام اور انداز جو قدریں، اونچی قدریں کسی بھی قوم کے اندر تھی،
सारी कौमों के अंदर अक़दार थी, यहूदियत के अक़दार थी, हिंदुइज्म में बहुत कदरें थी आला औरत के सिलसिले में। वो सब दीन के दुश्मनों ने, ईमान के दुश्मनों ने, औरत के दुश्मनों ने ये तफरीक पैदा की और कहा कि तुम आजाद हो तो आजादी का हर काम करो। गोया कि जैसे आप कहें कि मैं आजाद हूँ, मैं अपनी लाठी इस सजा में भाजने का, घुमाने का, अपनी बंदूक की नाली जिधर चाहूं मैं काम करके छोड़ दूं सजा में, तो यह आजादी नहीं। ऐसी आजादी से खुदकुशी बेहतर। कोई इंसान की नाक महफूज नहीं रहेगी आपकी लाठी से, कोई सोसाइटी आपसे महफूज नहीं रहेगी। यह आजादी नहीं है, ये सबसे बड़ी गुलामी। आप जब ऐसी लाठी चलाएंगे तो जिसकी नाक महफूज नहीं है, या बकिया लोग तो तमाशा नहीं देखेंगे, आप हथियार तमाशा करेंगे। आप जितने आजाद बन रहे थे उतनी ज्यादा कैद किए जाएंगे। बंदूक चलाया है, हो सकता है कि कैद और कत्ल भी किए जाए। तो ये आजादी नहीं। लेकिन औरत को समझाने वालों ने समझाया कि तुम आजाद हो तो हर तरीके से आजाद हो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा वक्त मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी में किसी और का दखल नहीं। तो उससे जो फसाद पैदा हुए हैं जिस तरीके से दुनिया में, उससे दुनिया की नाकदाज कर देता है। मैं शुरू में एक बात याद कर देता हूँ। अमेरिका की कई ख़वातीन ने, कई मुफक्किरीन ने कहा कि ये बात तो देखने में बहुत बेहतर नजर आती है कि मर्द थोड़ा सा इस माना में मुतमईन है कि उसकी रोजी रोटी के मसाइल उतने संगीन नहीं है, उसके बीवी के मैदान में, मैदान अमल में निकल जाने की वजह से, उसके आजाद हो जाने की वजह से, यही नहीं कि बीवी के अखराजात और नफकात और उसके अखराजात क्या है, कुछ हम पर हल्के पड़े हैं। इसी तरीके से बच्चों का बोझ भी कुछ कम हुआ है, बल्कि उन दोनों की आजादी के नतीजे में बच्चे अब तो दूसरों के गोद में पल रहे हैं। आज तो बहुत अच्छे वालिदैन हैं अमेरिका में, तो अभी मैंने मुशाहिदा किया है वहाँ आंखों से, और मिलने के बाद देखा कि हकीकत में बच्चों को जो सबसे अच्छे गार्जियन हैं, मियाँ बीवी दोनों के निकलने के बाद उसको सवेरे अगर मियाँ बीवी साथ रह गए तब, नहीं तो दोनों कहाँ कहाँ नीलाम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे आजादी बरत रहे हैं दोनों, इस तरीके से किराए के घरों में कहाँ कहाँ कैसे किसके साथ बनते हैं, तो उससे पते लगा हम दोनों साथ हैं या अकेले। बाप ने ले रखा है बेटे बेटी को, या बीवी ने ले रखा है, या दो है तो हमारा रखा है। वरना अक्सरियत तो इस माना में है कि अब हमारी आजादी में ये बच्चे भी हायल हो रहे हैं। बच्चों में यानी जब घर से निकली वो खाना पकाने से, खाने पीने से, सबसे, तो वो अब घर से आजाद हुई, शौहर से आजाद हुई, माँ बाप से आजाद हुई, या वो हुआ, तो अब वो बच्चों से भी मुकम्मल आजाद। वो 5 बच्चों की या 50 बच्चों की माँ हो चुकी है दवा खाने के बाद भी, लेकिन बच्चा गोद में कभी खिलाने को उसको नहीं मिला। एक तरफ ये सबसे बड़ा सामया लेके आई, और दूसरी तरफ क्या है कि अगर उस बच्चे को किसी भी तरीके से रखा, तो सुबह मैं देख रहा था यहाँ पर था पूरी जगह की 200 गाड़ियां ऐसे सबके घर के सामने लगी, तो मैं 3 बजे रात से देखता था कि औरत भी निकल रही है, मर्द भी निकल रहे हैं ड्यूटी पर। सारी मुसलमान को हर आदमी ड्यूटी करता है, चाहे 80 साल का बुरा हो गया, तंदुरुस्ती है तो आपको ड्यूटी करनी है, क्योंकि बेटा तो है नहीं कि आपकी देख रेख करेगा, बेटी करेगी नहीं। हुकूमत की पल्ले झाड़े हुई है कि आप चल सकते हैं, कर सकते हैं, हिल सकते हैं, नालायक बिल्कुल नहीं हो गए हैं, ज़ईफ या कुछ नहीं कर सकते, तब तक आपको नौकरी करनी है। मकान के किराए के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी दवा इलाज के लिए हुकूमत नहीं देती। हाँ, ये
एक पूरे तरतूब का एक अच्छा नतीजा ये है कि बेटा है कि बेटी है ना बाप है ना कोई नहीं है, तो अब आप जब बिल्कुल नालायक हो चुके हैं तो आपको ओल्ड हाउस में रखा जाएगा और वहां आप पर हुकूमत कर सकेंगे। तो वहां असल में जो अर्ज कर रहा था वो ये है, इस रिपब्लिकन ये दुनिया के अक्सर मुल्कों में आपको हुकूमत बन रहा है और वहां पर कुछ तहजीब और तमद्दुन के जो आला मेयार उन्होंने कायम करने का दावा किया है, तालीम है, समझा कि नहीं समझा, वो उसकी वजह से वो बुराइयां कम है, लेकिन उन मुल्कों में जो कौवा चला हंस की जान हम भी उसी रविश पर जो बह रहे हैं तो वहां बदतरीन था, क्योंकि हुकूमत ने इंतजाम नहीं किया या हुकूमत ने कर भी किया तो जो उसके अंदर है या तो पूरा पूरा राशन खा जाते हैं, अरबों के हिसाब से जो राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वो पहुंचती नहीं वहां पर, लेकिन वहां पढ़ी लिखी कौम है, जानती है, तो उसको उसी तरीके से करेगी। ये वक्त की गजब फराहम की जा रही स्कूल में, लेकिन पहुंच कैसी रही है, सड़ी गली एकदम खराब स्कूलों में, जिससे कौम बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो वो चीज है भी नहीं, अगर बन भी जाए, जब बना भी हुआ है तो सबसे बदतरीन हाल। तो वहां वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, जो सबसे अच्छे वालिदैन हैं, अपने बच्चों को वो सुबह सवेरे कहाँ छोड़ेंगे, हाँ वो किसी ऐसी दाई के यहाँ किसी ऐसी जगह छोड़ते हैं कि वो शाम आपके 8 बजे लौटे या 8 बजे लौटे या 7 बजे लौटे या 10 बजे लौटे, इतनी दूरी आपकी नौकरी मिली हो जहाँ आप जाती, तो उस वक्त आप आएंगे तो उस बच्चे को रिसीव करेंगे। ये एक, वरना सिरे सिरे को हवाले कर देते हैं साल के लिए, ये इतने साल के लिए वो दूसरे के हवाले, उसका पैसा देते हैं कुछ, समझाते हैं, तो उतना भी देखना गवार नहीं। तो ये 3 हालतें हैं। तो आजादी से क्या हुआ, तो इस कदर आजाद हुए कि अपनी औलाद से भी आजाद हुए। तो वो अमेरिकन औरत ने अमेरिकन औरत, उसने कहा कि सब कुछ गाड़ियां हैं, अकेले हैं तो गाड़ी लेना थोड़ा मुश्किल है, मकान में थोड़ा अच्छे रहना मुश्किल है, वो आप कमाई से आप अच्छे मकान में नहीं रह सकते। हाँ, जनता का ये हाल, आपको किराया इतना देना होगा, मेडिकल इतने देने होंगे, टैक्स इतने देने होंगे, बचेगा ही नहीं आपको ये अच्छी गाड़ी खरीद सकें, और खरीद ही नहीं सकते, अच्छी आमदनी वाला भी मेरा बैंक है जो शुद्ध भी नहीं खरीद। तो अब दोनों भी ज्वाइंट अगर ऐसा करते हैं, ऐसी सूरत में वो गाड़ी भी उनके पास अच्छी हो सकती है और घर भी रहने को अच्छा हो सकता है? अपना घर नहीं, आमतौर पर आप देखेंगे अमेरिका वगैरह में तो 70% लोगों के पास घर नहीं है। यहाँ भारत में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, कुछ नहीं थे खोपड़ी, और हम लोग हैं जो बिना घर के हैं, चाहे वो 20। तो अब उसके लिए उसने क्या किया है कि वो अच्छी गाड़ी, अच्छे घोड़े, अच्छे घर में वो रख सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर उसने कहा कि घर उजड़ गए हैं, ये घर नजर आ रहा है, गाड़ी नजर आ रही है, थोड़े पैसे बचत में थोड़े से बच रहे हैं, हो सकता है कि बुढ़ापे के आखिरी मंजिल में हम कोई घर खरीद लें, समझा कि नहीं समझा, और या बीच में लोन लेकर के खरीदते हैं, तो उसके बाद 30 साल 35 साल तक मुसलसल अदा करने के बाद इंडियन मिले हमको, वो बांग्लादेशी मिले, तो कहा कि 30 साल में मौलाना हमको इस घर में आधी उम्र कमाई गुजर गई, आधी से ज्यादा गुजर गई, 30 साल में मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा देता रहूं मुकम्मल, बल्कि अक्सर देता रहूं, तो 30 साल में ये घर मेरा होगा। मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आजादी के चक्कर में, समझा कि नहीं,
आप नौकरी मेरा करके आए, लेकिन किसी दिन करने के बेटे के साथ रह गया और बड़े वक्त से इसी मस्जिद के साथ आए, तो मुझे दिखाई दिए तो क्या है कि मैं आया जर्मन से मौलाना साहब, और वहाँ बेटे की शादी भी की, और वहाँ ऐसा है और ऐसा समझा कि नहीं समझ। तो यहाँ बेटा जो है कहता का मेरा बेटा पढ़ दिया मकान, तो वहाँ उसने कहा कि एक तो हमारा कुप्पा खत्म हो गया, हमारा घर उजड़ गया, दो हरी होने के लिए हम तरस गए और मोहब्बतें नापैद हो गई। और आप कुछ दिन तक अपने फैमिली से, खानदान से अलग होकर देख लीजिए, एक तरह से बेजार आपके अंदर पैदा हो, तन्हाई की जिंदगी हो। तो ये इसीलिए वहां इस वक्त लोग एक जोगी बैठ जाना ऐसे ज्ञान है, तो पता नहीं कितने लोग वो उस जोगी के दीन को कबूल कर लेते हैं। हमने देखा मस्जिदें बहुत नजर आ रही है, गिरजाघर सब उजड़े हुए हैं, तो कोई खरीद रहा है, कोई ऐसे भी नाम पड़ा हुआ है, तो देखा कि मंदिर भी बहुत सादे पड़ रहे हैं, बहुत से मंदिर। ये कैसे तबलीग करते हैं? कहा यहाँ तबलीग की जरूरत नहीं है, वो हारमोनियम बज रही है, उसको सुकून मिल रहा है, कुछ भजन गा रहा है, उसको कुछ सुकून मिल रहा है, फलां चीज हो रही है, उसको कुछ सुकून मिल रहा है। और ये चीज मैंने लंदन में देखी थी, बहुत ज्यादा ये क्या है कि इतने सारे लोग इस खेत में चले जा रहे, सब अपने नजर आ रहे हैं, तो कहा कि इनको सुकून चाहिए, और इस भजन से और इस ज्ञान ध्यान से, इस मेहनत से इनको एक सुकून मिल रहा है वहां के बैठे। तो इस तरह बाप तो है नहीं, माँ तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, 100 बीमारियों का इलाज आपको जो डिप्रेशन है, जिस्मानी है, खलजान है, खफगान है, यानी दिल में जो इस्तिराब है, परेशानियां है, जहनी टेंशन है, यानी उसको हकीम और डॉक्टर 10 तरह का नाम देते हैं बीमारियों का, और उसका असर आपकी सेहत पर, जिस्मानी आज़ाए यानी मेन पार्ट्स जो है जिसमें, वो सब मुतासिर हो रहे हैं आपकी घरेलू झगड़े से, घरेलू टेंशन से, या दोस्त के किसी अच्छे ना होने से, या भाई के अच्छे ना होने से, या बाप के अच्छे ना होने से, या बेटों के पैदा होने से, या बेटी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बहुत बड़ा मसला है जो हमें समझने की। उस औरत ने बताया कि इस तरह से इसने हमको पूरा कर दिया है, अब हम गोया के सब कुछ पा करके भी, चमक दमक रोशनी आजादी सब कुछ हासिल करके भी हम इंतहाई दर्जे अंदर से खोखले। ये इन सब चीजों ने क्या किया है, देखिए अब असबाब है बेहयाई के असबाब इतने ज्यादा हैं कि उसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन मोटा मोटी आप देखें बेहयाई के असबाब में, घर में माँ बाप या घर वालों का जो रहन सहन है वो बहुत बड़ा असर पड़ता है। इतनी बड़ी बच्ची है मेरी, और उसको मैं ठीक इस वक्त के रिवाज, बच्ची है, उसको वाकई मुकल्लफ नहीं, आप बहुत ज्यादा गुनाहगार ऊपर नहीं, कि इतनी छोटी बच्ची को इस वक्त मौजूदा दौर में जो लिबास पहनाया जा रहा है, दुनिया पहन रही है, वही लिबास आपको बड़े हीरो पहन रहे हैं या ये तीन लोग पहन रहे हैं, वो लिबास घर घर चल रहा है। उस छोटी सी बच्ची पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप ये कहते छोटी सी बच्ची, इसको मौलाना साहब अफवाह दिखा रहे हैं, अभी तो मासूम है, ये इतनी छोटी सी बच्ची है, तो आपने अव्वले दिन से उस लिबास को पहनाना शुरू किया। आप चंद सालों के बाद गोया कि आपकी उसकी जो जिस्मानियत थी, उसका जो मिजाज था, जिन बुनियादों पर उसको परवान करना था, और जो 25 साल की उम्र में 25 खत्म कुरान करवाएंगे, उसकी तफसीर पढ़ाएंगे, और खास तौर पर आयते हिजाब को, पर्दे को, इस्लाम की खूबियों को, इस्लाम को आप उसके सामने रखेंगे, जितना असर नहीं कबूल करेगी वो या बच्चा नहीं करेगा, उतना आपने उसको अकल नहीं है। इतने छोटे में जो कुछ आपने किया होगा, तो जो बढ़ता चला जाएगा, उसका वही शोर जो बचपन में था, बल्कि माँ ने जो दूध पिलाया था
दूध पिलाया था बिस्मिल्लाह करके, उसके असरात बुढ़ापे पे पड़ने के वक्त में होते हैं। जैसा आजकल जैसा में आप क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट में कोई चिकन खिला रहे हैं या चिप्स खिला रहे हैं, कुछ ये बुनियादी हमारा का वो है। अब सब कहते हैं कि डिब्बे की, ये जो नई नस्ल है वो डिब्बे की होगा, डिब्बे की परवरिश करे कि नहीं करे, बीमारियों की आवाज अब हर आदमी समझ रहा। तो उससे ज्यादा रूहानी ग़िज़ा सबसे बुनियादी चीज है। रूहानी ग़िज़ा यानी उसके रूह को आप कहना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि बेटा देखो ये तेरे चचा, और दूसरी ग़िज़ा आप क्या दे रहे हैं कि आप इसका दिमाग बढ़े, आप विटामिन ला करके दे रहे हैं, बेहतरीन हमदर्द का यानी सबीरा अग्रेशन हकीकत या दिमागी रैडिकल वो ला करके दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिस कदर इसकी शख्सियत को बनाने में ये दिमागी काम नहीं करता तो है, लेकिन जितना ये करता है कि आप इसको दिमागी वजन करके ये तुम्हारे बड़े हैं चचा, इनके साथ अदब से पेश आओ, और ये छोटा है इसके साथ ये पेश आओ। क्या कहते हैं कि एक अल्लाह है, अल्लाह जिसके सामने ये तुम्हारी अम्मा है, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार इस पर है, समझा कि नहीं? वो ये कहानी उसके दिमाग के लिए, उसके नशोनुमा के लिए सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी चीज है। माहिरीन नसियात सब कुछ आपने एक मतलब बिस्मिल्लाह कहा होगा, वो आजकल बिल्कुल साफ ये जितनी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, और जितनी तरह की आप बातें सुनते हैं, वो सब आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपकी जवानी पर, आपके रेशे पर वो असर करता है। और वो कहते हैं कि जरा हाथ सेना ने लहर नया वो आपने धोती छुरी से या बहुत तेज छुरी से किसी के सर पे काट दिया, जिस पर काट दिया तो क्या होगा? वो किसी न किसी दिन वो जख्म भर जाएगा, भला जलता लिसान, लेकिन ये सेना तीर का जख्म भर जाता है, लेकिन लिसान जबान का जख्म कभी नहीं। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, और इसके सिर्फ दुश्मनी पालने के लिए नहीं कहा गया, वो उसके असरात पड़ते हैं इंसान के ऊपर। ये नहीं कि आप पाल करके बैठे हैं, आप बुला देते हैं ताकशूर में वो है, इतना नुकसान आपको समझाते हैं। ये ग़िज़ाओं का मसला जो इस वक्त है, उसकी आप मैंने बहुत छोटी सी एक मिसाल दी है कि आप अव्वले दिन से अगर उसके लिबास का ख्याल, किसी ने टोका था, हॉस्पिटल से खबर आई कि बच्चा पैदा हुआ है तो इसलिए करके आओ, तो उससे पहले बच्चा पैदा हुआ था तो कहा कि बस वो सब नर्म कपड़ा चाहिए उसको, और सबसे पहले वाले बच्चे के छोटे बच्चों में तो कभी सब वही एक तरह की नमाज मान ले, पैदा होने के दिन नर्म था, पहले दिन पैदा हुआ, बच्चा दिन पैदा हुआ के बहुत आज तो लोग गिफ्ट भी देते हैं अपने के दिन, तो ये सब त्योहार सब चला हुआ। तो कुछ औरतें ऐसी होती है कि उसको संभाल कर रखती है पुराने कपड़े, और वो सब उसको तरजीह इसलिए भी देती है कि पुराना कपड़ा जो क्या है उसके जिस्म के लिए, उसके नर्म शब्दों के लिए वो ज्यादा मुफीद है, नर्म हो चुका है, समझा नहीं समझा? तो उसने कहा लड़का क्या है, ये लड़का है बच्चे लेकिन है लड़की, इसलिए उसके अव्वले दिन से इस तरीके से हम इम्तिहान का आधार देते हैं, ये कहते हैं पहला कलमा जाहिल माँ बाप भी, इसलिए पहले जाहिल माँ बाप के बच्चे ज्यादा अच्छे होते थे बनिस्बत आशाब में, मॉडर्न पढ़ने का है तो वो हम नहीं। मैंने जायजा लिया अपने गाँव इलाके का, तो कोई सुना कि जल्द हो गया है तो शरीर कराने का रखा, और उसी कराने के लड़के दिल्ली में आके बसे, मुंबई में बसे, और सऊदीया में उस खानदान के लड़के यानी अपने खानदानी रवायत में बीए तक भी नहीं पहुंचे शहरों में। इसलिए क्यों, उसकी वजह क्या है? तो खास माहौल में खास तरीके से परवरिश का है, इसलिए आगे तक उसके असरात रहे।
اور یہاں آزاد ہو گیا وہ 10 طرح کی آزادیاں بھی تو اس وقت سے خیال کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے ماں باپ کے آنکھوں میں اگر شرم ہے حیا ہے بھائی ایسے غیرت مند ہے سوسائٹی ایسی غیرت مند ہے تو وہ بچی پر بے حیائی کے اثرات نہیں پڑیں گے کم پڑیں گے اچھا سے اچھا ہوگا سمجھا کہ حکومت ایسی ہو آپ کا حاکم ایسا ہو کہ وہ ان سب چیزوں پر ایک ایسا قانون بنا رکھا ہو ایسے وہاں بھی آپ جس اسکول میں ہیں وہاں بھی تو سب سے پہلی چیز جو ہے اسلامی انسانی حقیقی دونوں جنس مرد اور عورت کی آپ اسباب میں سے کہ اس کے آپ نے توجہ نہیں دی تو اسی دن سے وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے ایک استاد تھے جس کو سب ہم لوگ بہت پسند کرتے تھے ایک فصل میں ہم کئی سو بچے ہوتے تھے ایک کلاس میں لیکن ایک سال میں ہم لوگ 65 نکلتے تھے تو سارے بڑے استاد مدینے کے دنیا کے ایک استاد کو کرتے تھے تو ہم لوگ سب بڑی تیز سے دھکا دے کے دوسرے کو نکلتے حالانکہ وہ تیار ہو چکے تھے کہ یہ نکلتے تو وہ گھیرے ہم سے کچھ اور سنے اتنا زوردار پڑھاتے تھے ان کی معلومات تھی تو کہنے کا مطلب زیادہ نہیں کروں گا تو ہوا کہ یہ آدمی قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ ہے عالم اسلام کے سر پہ نظر رکھتا ہے اور کیا تھا فخر لیکن یہ تھوڑا کہیں کہیں شک ہوتا تھا کہ یہ پیسے نہیں ہے جیسے ہونا تو میں نے کہا دیکھو سب کچھ کہو لیکن ان کو کتاب و سنت اللہ اتنا والا کہو جیسے ہوتے تو ہمارے ساتھی سے ناراض ہو گئے ایک دن اتفاق سے جامعہ سے باہر کسی یہ میں فیلڈ تھا اس وقت دیکھا کہ اور آگے بھی اس میں دیکھا کہ وہ گاڑی میں جو کار میں اوپر وہ کھل جاتا ہے تو کھل جانے والا تھا اور اس میں دیکھا کہ ایک بچی 10 سال کی یا 8 سال کی ایک بچی اس پر شیشہ ہٹا ہوا کھڑی تھی اور وہ آ رہے تھے تو ان پر نظر پڑی تو میں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کتاب و سنت کے پیروکاروں میں سے ہو نہیں سکتا آپ جیسے بچیاں پڑھتی ہیں کپڑا یہاں تک تھا یہ تھا لیکن وہ کپڑا جو ہے نا بچیاں پہن لیتی ہیں اور نیچے بھی تھا لیکن وہ بالکل سٹیکا جو ہوتا وہ تھا میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا لیکن جس دن ہم لوگ فارغ ہو کر رہے تھے سارے ساتھیوں کا یہ تھا کہ آج نصیحت کرنے کے لیے ایک صاحب نے اپنی چھت پر دعوت دی کہا کہ وہاں سارے ساتھی اکٹھا ہوں گے اور کس کو بلایا جائے ہوا کہ ایک بڑے حدیث پڑھانے والے قرآن کہا کہ ان کو بلایا جائے میں نے کہا آخری وقت میں کچھ نصیحت کی گئی ہے واقعی قرآن حدیث کا عامل اور حامل ہو تو کہا کہ نہیں اسی ہمارے تو بہت جدائی کا وقت ہے ہم دودھ میں جا رہے ہیں بنے ہوئے رہی تو وہ عالم اسلام چپے چپے نظر ہے ان کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو نصیحت کرے گی انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ہمارے دعوتی میدان میں ہم پڑھائیں کہ کہیں جا کر کے دعوت دوبارہ انہوں نے آئے ہو تو آدم علیہ السلام سے چلے اور کہیں نہ کہیں اس کو بھائی کیا ہو رہا ہے یہ تو وہ منہج نہیں جو منہج الانبیاء کے اصول تھا دعوت میں یہ یہاں تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو دنیا چاہ رہی ہے جلدی سے ڈنڈے سے ساری دنیا کو کلمہ پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو تو یہ اصول تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا آدم علیہ السلام کا بھی نہیں تھا اور حابل فاضل کا بھی نہیں تھا علیہ السلام کا بھی نہیں تھا تو یہ تو بات تو دوسری طرف جا رہی ہے لمبی کہانی ہے کہ پھر وہ کیسے ساتھ بات ہے کیسے بات کی جائے تو بڑے ادب سے دوست نے کہا کہ اس کو انہوں نے یہ کیا انہوں نے اعتراف کیا کہ دیکھو میں دوسرے ایک سے سمجھا رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو یہ تھی میں نے کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ چیز جو سب سے بنیاد ہے وہ گھر کا ماحول ہے بے حیائی کے سلسلے میں. بے حیائی عورتوں میں کیوں آ رہی ہے؟ اور وہ ہے پوچھا کسی نے آپ سے بتاؤ کیا ہوا؟ نبی کے آپ کے مردوں بھی پڑ گیا. جس دن مردوں کے نام پر کی بیٹی کو بیٹی کی چادر کیسے اٹھی ہے، اس کا نقاب کیسے اٹھا ہے، اس کا پاؤں کیسے کب سے اٹھ گیا، تو سمجھیے کہ اب یہ پردہ کہاں ہے. یہ پہلے مرد کے چہرے پر پڑ چکا تھا، اس کے بعد ہی یہ عورت نکل سکتی. لیکن اس کی آنکھ پوری ہوگی تو بہو کے تعلیم کے نام پر، آزادی کے نام پر اور دنیا کے اور کسی نام پر وہ کبھی بھی بے حیائی کے راستے پر نہیں چل سکتی. اور آگے اس وقت عورت کی تعلیم کا مسئلہ، تو تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید کے دن جو خوشی مناتے ہیں اس دن مردوں میں جتنا خطبہ دیا اتنا ہی جگہ عورتوں میں بھی دیا. حالانکہ عورتیں ساری تقریر جیسے آج سن رہی ہے پیچھے، ویسے ہی اس زمانے میں بھی سنتی تھی ہر بات. ہر نماز میں رہتی تھی، گھر والے تاکہ بنائیں اور وہ سب چیزیں تھی. لیکن عید کے دن اجتماع اچھا، عید کے دن سب خوشیوں میں آئے ہیں، اس دن کی نصیحت ایک دوسری نصیحت ہے. تو آپ عورتوں میں تقریر کرنے کے بعد جس کا حصہ خود عورتیں تھی الگ سے عورتوں میں گئے، الگ سے ایک وہ دن سکھایا آپ نے جو مردوں کو الگ سے نہیں سکھایا. پھر آپ نے ہفتے میں ایک دن تیار کیا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہفتواری کیا چیز ہے. ہفتواری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم ہفتے میں ایک دن رکھا اور صحابہ اپنے بڑے عالم ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے جمعہ کے خطبے کے علاوہ، اور ہر وقت وہ ایک ایک چیز لکھتے بھی تھے، ایک ایک دن روزات بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اس میں عورتوں کا یا معاشر النساء قرآن میں سورۃ الرجال کہیں نہیں دیکھتے مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء تو سب جانتے ہیں سورۃ النساء ہے. اور اکثر اسلامی قوانین تو اہم ترین قوانین ہے، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، میراث کے حقوق، یتیموں کے حقوق، شادی بیاہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، یعنی جتنی معاشرتی سوسائٹی والی زندگی ہماری ہے وہ سب میں اس میں بہترین طریقے سے یتیموں کی پرورش، باپ کی دیکھ ریکھ کیسے ہو، یتیم بچیوں کے نکاح شادی بیاہ کیسے ہو، وہ الگ سے اس کو بڑے اہتمام والے طریقے سے. تو یہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ اسکول کا معاملہ ہے. اسکول کا جہاں آپ بھیج رہے ہیں تعلیم کے نام پر، اس کا ماحول کیسا ہے اور وہاں کس طریقے سے رہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں کن لوگوں کے ساتھ آپ کے بچے کی تعلیم ہو رہی ہے. اور خود کو خاصی میں نے دیکھا ایک بات اور میں آپ سے، یہ جو خانہ کعبہ مسجد حرام ہے ابھی ان کا انتقال ہو گیا، یہاں آ چکے ہیں، یہاں تو نہیں لیکن یہاں آ چکے ہیں دلی جامعہ اسلامیہ بنارس، جو سلسلہ ہند کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں وہ آئے اور میں نے دیکھا 3 دن سے وہاں سے یہاں کر کے یہاں سروائی منزل میں وہ داؤ میں تھے 3 دن گھر میں. اور وہ سعودیہ کے نائب وزیر مالیہ بادشاہ کے پد پہ بیٹھنے والے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے مقامات دیے. یہ جو ڈائلاگ صبح اسلام کے خلاف جو بننا ہو رہا ہے وہ ڈائلاگ کی دنیا میں کھولا کیا جاتا ہے. اس ڈائلاگ کے صدر وہی تھے عالمی سطح پر سعودی حکومت بادشاہ کی طرف سے. اور مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا مسجد حرام دونوں کے معاملات میں وہی صدر تھے جس کا بھی شیخ ہے. ایسا انسان انگریزی اعلیٰ درجے کے پڑھے ہوئے، دین کے بڑی بڑی کتابیں لکھے ہوئے، یہ اسلام فوبیا آیا تو میں نے سب سے پہلے ان کی کتاب دی اور اس کو دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم کی ایک بچی امریکہ میں پڑھتی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا کہ یہ جتنا نیک انسان ہے ایسا انسان علم والا، دین والا، ایمان والا
नहीं मिलेगा। और नजर कैसी उनकी कि जो सबसे अच्छी किताब लिखी गई है कि दूसरों की तहजीब, दूसरों के तवक्कुल के सिलसिले में लिबास, पहनावा, पढ़ाई, चाट-खान, मैदान अमल, दुनिया के जिस रास्ते में भी देखें, मन तशब्बह बिक़ौमिन, आप जितने बड़े भी आलिम हैं लेकिन दूसरों के मुशाबहा, दूसरों का तौर तरीका अपनाते हैं, आप उसमें भी नहीं करेंगे। मौलाना साहब नहीं कहा जाता और मौलाना हम अगर ये लिबास पहन लिया तो क्या हो गया, हम तो पक्के नमाजी हैं, हमारी दाढ़ी तो है लेकिन हम सिर्फ एक चिंता ऐसे हैं, अल्लाह खा जाता है वो। और वही एक कभी आपकी औलाद की बेरादरी की और आपके घर की बेरादरी की, आपकी दिगर बेटियों की, आपके बालों ये बन जाए तो उनको हुआ कि ये दुनिया के नेक तरीन इंसान वैसा नेक मैंने नहीं है, शेख जवाब को करने हैं लेकिन बात चीजों मुझे वैसा इंसान नहीं मिला। तो वह आप अमेरिका हुआ, मैंने दिल्ली में कहा कि ये देखो ये बात तो ये है कि सारी दुनिया को जवाब देते हैं। 7 दहशतगर्द के बारे में जवाब दिया सबसे पहले उन्होंने, और इस्लाम की सही नुमाइंदगी और परफेक्ट उनके पास जवाब और इल्म का इंसान थे। वो 80 साल के हो चुके थे लेकिन उसी तवानाई से काम करते थे। वो तवाज़ो कि जो इतने बड़े मनसब पर हो आकर के आपके शाहीन बाग के घर के रास कभी कॉन्फ्रेंस है तो जितने लोगों को देखो मौलाना लोगों को छोड़िए, आवाम भी हमारे रहने का खाने का क्या हाल है। रामलीला मैदानी भी हो गए कि किसी होटल को या आपने क्या क्या चीजें की, वो आदमी आकर के कहते रह गए। छोटे छोटे लोग आते हैं वो बनारस के सबसे बड़े होटल में रहते हैं लेकिन वो उसी दारू से आके वो कहते थे नहीं हम तो ये छोटा वाला कमरा हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा वाला आदमी है। और सफर में भी एक दिन होता है वो किस्सा सुनाऊंगा उनकी बीवी के पर्दे का तो हमको शक हुआ कि शायद चाहे जितना कुछ भी हो लेकिन मुझे मार नहीं है। तो उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि देखो ये कालीन जो बिछी हुई है ये जिसके औकात से दुनिया में बहुत कुछ चलता है, वो एक छोटे से सरकारी घर में एक छोटे से घर में तो कहा मदीने वाले घर में डेरे में कहा कि ये मेरे पड़ोसी ने इस कालीन को फेंक दिया तो मैंने ये कालीन बिछाई है। बताइए अमेरिका की पड़ी हुई और सारे बेटे बड़े बड़े ताजिर बड़े बड़े प्रोफेसर वो दूसरे के घर से फेंके हुए कालीन बिछाएगा उसके बाद जो बादशाह के साथ बैठता है। तो कहा कि ये कालीन हमने हमारे पड़ोसी ने फेंक दिया तो मैंने उठा लिया। और दूसरी ये कालीन जो देख रहे हो ये मेरी बच्ची को इनाम में मिला तो मैंने इसको उसने कहा कि अब्बा इसको आप ये ले उसी में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की पड़ी हुई है लेकिन उसको अमेरिका में चाहे आप किसी में भी उसकी नौकरी कि कहीं से उतना बापा बच्ची सब बापा है नहीं लेकिन उसको उस तरह से उतनी नेक नहीं मिलेगी और कितनी तकलीफ की कितना आला क्वालिटी की आला डिग्री लेते हैं। लेकिन उसी तरीके से जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा ये वो कौन थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तस्लीम जब गए थे मिस्र से अपनी जान बचा करके हदियन तो दूसरे नबी से मिले और नबी की बेटी के क्या नाम तालाब पर पानी पिला रहे थे सारे चरवाहे सारे लोग उन्हें पानी पिला रहे थे। देखा कि दो लड़कियां अलग थलग एक दरख्त के आड़ में बैठी हुई हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मामला इस तालाब पर चाहिए इस कुएं पर पानी पिलाने के लिए तुम इस से तुमको क्यों बैठे बदले से करते हैं। तो कहा कि देखिए हमारे अब्बा तो बहुत बुढ़े हो चुके हैं और उनके पास कोई पैसे नहीं है कोई नौकर नहीं है कोई बेटा नहीं है कोई ये देखने लोग आते हैं कि हमारी बेटियां ऐसे हैं वैसे हैं और ऐसी बेटी और उसके बाप। तो उन्होंने कहा कि क्या है कहा कि तुम्हारे करीब में पूरा किस्सा जिक्र है
कहा जितने चरवाहे हैं, जितने जानवर हैं, पानी पी पी पिला करके जब चले जाएंगे तो हम अपने बकरियों को पानी पिलाएंगे। इस भीड़ में वे कैसे भी आ सकती। आज आप देख लीजिए कि क्या हालत हमारी बच्चियों की, किस भीड़ में, किस मार्केट में, किस बाजार में, कहा हम इतनी छोटी है उसी दिन से अम्मा लेकर के जा रही है मार्केट, माफ कीजिए उसी दिन से मार्केट लेके जा रही है। स्कूल के धक्का मुक्की तो अपनी जगह अलग है और कलबों का अलग है, दुनिया का अलग है। वो जो थोड़ा सा दिल्ली क्या है ऐसे मार्केट कर रहे हैं, अब तो देहात के अपना जीप फंसा करके जा रही है और ससुर भाई खानदान सब बाहर कमाने गए, दिल्ली आ गए हैं, सोवियत में गए, लेकिन वो किस तरह से निकलती है अल्लाह ही मालूम। जो तरह तरह के फैशन जो आ रहे हैं निकाह में, वो एक फैशन है, बेहयाई कहाँ से आती है ये, तो वहां उन्होंने उनको दिया वहां से बकरियों को। उसी साले सलाम बहुत जबरदस्त थे, शुएब अलैहिस्सलाम के बकरियों को पिलाया और पिलाने के बाद वो ला करके इनको उधर रखा दिया, वो लेकर के चली गई और वो चली गई तो देखिए ये होता। अब हम सिर्फ बच्चियों को बताइए कि बेहयाई कहाँ से आ रही है। असल बेहयाई मतलब ये मौलाना करते थे औरतों के सिलसिले में जिस कदर मक्का, जिस कदर बेहया, जिस कदर बेगैरत मर्द होता है औरतों को सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। अगर एक अजनबी इंसान गैर कौम की, गैर मुल्क की, गैर जगह की रहने वाली औरतों पर के उसको देखा ही नहीं और गैरत ऐसी के अनजाने में तो कहते थे कि ये मुस्लिम की लड़की है, ये फलां की है, हम उसके लिए सीट नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते। वो पिलाने के बाद देखिए किसी तरह की किसी अल्लाह से रिश्ता हो, आपकी बच्ची जब कमाएगी कुछ बनेगी तब नहीं है कि आपकी रोजी चलेगी, उसको सुख से जिंदगी गुजारेगी, वो रानी बन करके रहेगी, बल गए खानदान लगाएगी, वो नहीं हो सकता। अब होगा ये मर्दों की निगाहों की हिफाजत से पहले। ये अगर बागैरत है तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई बेगैरत औरत बेहया और लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं पैदा हो, शायद मुस्लिमों में नहीं। जानते हैं कि इतना बाहया ये हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा मुसलमान है, तो एक तरह जरूर आपके नजर नीचे करने से सीखेंगे। समझा नहीं समझ? ये वहां पर आकर के उन औरतों को देखने लालच और ये कितना लंबे भूखे थे भाई, भूखे कितने थे। वहां लिखा जाए तो किताब लिखी जाए कि सिर्फ इस मदियन के जो एक घंटे का जो आपने दुनिया समझ रहे, भूखा इंसान, प्यासा इंसान और ये औरतें जवान राना किसी बच्ची को नहीं देखा और वहां आकर के क्या करते हो दुआ तो मांगी कि कितना पूरा हो, अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए भलाई का रास्ता पैदा कर देगा। हो सकता है कि यही सोचे इंसान कि कोई एक बकरी वाला कम से कम बकरी को उनकी वजह से प्यासे धोखे लग रहे हो, वो भूख प्यास अपनी हालत फकीरी को जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ल शाह कैसे कैसे इंतजाम फरमा है। हम कहते हैं अच्छी लड़कियां, अच्छे घर की इज्जत तो नामों को करते लगाते हैं, वहां देखने चले जा रहे हैं, वहां देखने चले जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, 5-5 ज्यादा रुपये। मैं तो कभी ऐसा किसी के ये गया नहीं, अभी गाँव गया तो फंस गए, बहुत बड़ी बात की अल्लाह ताला उन्होंने दूसरे को खुश करे, बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो मुझे जाना पड़ा, वहां देखा कि कैसे आए हैं देखने थे, एक आदमी देख लड़की को तो गांव में से भी 4 आदमी को उसको मान ही नहीं रहे, सब जाहिर भी काम ही था, समझा कि नहीं सब। तो ये सब मुश्किलात है। वहां मैं वहां कह दूं कि बेहयाई कैसे आती है, वहां दुआ करके अल्लाह हम बहुत फकीर है इस वक्त, तो बहुत अल्लाह ताला ने रोटी का वो सामान वहां पहुंचाया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जहां से शुएब अलैहिस्सलाम क्या थे, वो नबी थे अल्लाह के, उन्होंने कहा कि जाओ कमिल कौम ज़ालिमीन, हमारे जारी है समन आ गया है
पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, फिरौन के सारे फौजी लगे हुए हैं, उसके वजीर लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस लगे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने को पहले उनको ज़बह करते थे बच्चों को, और बच्चियों को जिंदा रखते थे। ये इस सूरत में उन्होंने कहा कि जालिम कौम से नजात अब यहाँ आ गए हो, अल्लाह को अपना खाने पीने का आला इंतजाम हुआ, और उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था कि जाओ उस आदमी को अगर मिल जाता है यहाँ तो ले आओ। आई क्या है अल्लाह से हया, कामिल हया की चादर बनी हुई, मारे शर्माहट के दोहरी होती है। ये बेटा नहीं है, बेटियां काम करती है। आप पता है कि हमारी बेटी है, बेटियां किसे नहीं करेगी, करेगी, ऐसी करेगी जो आ रही है, जब गई तक यहाँ मुलाकात हुई तक किसी तरह की कोई ये नहीं, और जाने के बुलाने के बाद मेरे बुला रहे हैं या दोहरी होती चली आ रही है कि काश मेरा कोई भाई होता, ऐसी जरूरत नहीं होती तो आती भी नहीं। और जब वहां से चली है ये सीखें कहाँ से आ रही है, आसमान बहुत से मैं नहीं बता करके कुरान के हवाले से आपको कह रहा हूँ। वो जब कहा तो चुपके से ये आगे चलना चाहिए ना, रास्ता होते हुई थी ना, लेकिन अब पीछे गाइड करने पीछे से एक मतलब इशारा कर दिया चल रही ना, रास्ते में बोलना। आप कहेंगे बच्चियां हैं तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, चलेंगे किसी से बोल दिया तो क्या हुआ। मैंने तो सुनाया था आपके आगे पहले तो नजर ही पड़ती है ना, फिर मुस्कुराहट आ जाती है दूसरी मुलाकात में, और तीसरी में एक आध दो लफ्ज निकलते हैं, और तीसरी में क्या होता है कि मुलाकातें शुरू हो जाती है, और चौथे में क्या हो जाता है मुलाकात के बाद तो कोई चीज बचती नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने बड़े भी वली हो तन्हाई में किसी औरत से मिल लिया, हमारी विलायत बाकी नहीं रह सकती। सीधे अगर इस्लामी हुकूमत है तो आप तुमको ज़बाई रज्म किया जाएगा, बुराई होनी है उससे तो ये बुराइयां करना हमारी बच्ची बहुत ज्यादा हया की चादर है, वो उसको कुछ नहीं। और फिर वहां से चले के चली है तो पीछे पीछे चल रही है और एक लफ्ज को ही देखा, और वहां अल्लाह ताला ने फिर एक बच्ची से शादी भी कर दी उनकी, और पूरी एक पूरा फिर दूसरे सफर का कहने का मकसद ये है, ये बेहयाई कहाँ से आती है, ये बाप भी ये तबीयत की है। आपने पुलिस नहीं लगा रखे, छोड़ने कोई नहीं गया, न बकरियां चराने में कोई गार्जियन था, न ही कोई पहरेदार था, लेकिन किस तरीके से वो आज सब चीज करके स्कूल में छोटे हो गया था, वहां देखा कि वो मैं चला जा रहा हूँ और बड़ी तेजी से वो गेट पर बिल्कुल अंदर गेट जो अंदर वाले गेट के दरवाजे, और पूरे तौर पर वो इतनी तेजी से दौड़ के गई कि सीढ़ी के पास में एक लड़का जा रहा था। फिर मैंने कहा कि देखो थोड़ा सा अब इस लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद इम्तिहान हो रहा, इम्तिहान में मैंने क्या हो सकता है कि उसको उसकी निगरानी हो ऐसे कर, लेकिन ये तरीका तो नहीं था। जब तो इतना लेट हुई कि और लेट होगा, अब यहाँ दो बार इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं और खड़े नहीं चल रहे हैं, और तुम सबको ये करते हुए जा रही अदब सीखो और पढ़ने पढ़ाने आई तो पढ़ाओगे क्या। लेकिन एक चीज थी कि मुकम्मल वो चेहरे से लेकर हर चीज में हिजाब में थी, लेकिन वो हिजाब कहाँ से आया, तो हिजाब आया है इसी तरबियत से, इसी इन्हीं चीजों की वजह से। दूसरी चीज जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, ये लिबास जो आप देख रहे हैं इस आंखों में, पहले तो सिनेमा था, हजार बुराइयां फैल गई, अब इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया की जितनी चीजें हैं वो सब मार्केट, एक आप साबुन की चीजिया खरीदिए या जहां कहीं भी देखिए बेहयाई, पहले कहते थे फिल्मिस्तान क्या है, बेहयाई का सबक मिलता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे नज़्म करके, बेहयाई का सबक मिलता है फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान अब तो फिल्मिस्तान से कहीं ज्यादा बदतरीन हालत किसकी है, शमनिस्तान इंसान,
श्रवण में पूरा बायोप्सी में हर तरीके से हम लोग बचपन में ये देखते थे कि एक किसी इंसान का, मर्द का, घोड़े का, चीते का की एक तस्वीर किसी वजह से अखबार में घर में आ गया तो अखबार है कि कहते थे आज फरिश्ते नहीं आए, कैसे ही घर में अखबार आ गए, बोलते थे कि बाहर में रखा जाए, फतवा पूछते थे। आज खुद मैं सोता हूँ तो अखबार से रख जाता है, तो जरा के सबसे पहले ऊपर वो है। अब तो किसी दिन वो टेबल से गिर जाता है नमाज के वक्त पढ़िए घर में। तो बेहयाई की ये जितनी चीजें हैं, और लोग कहेंगे ऐसा में बड़ी बेहयाई है, सुअर की चर्बी और जो हराम की कमाई, ये सब बेहयाई की सबसे पहले दावत देने वाली है। सबसे ज्यादा रूह की पाकीज़गी को खत्म करने के बाद क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इन चीजों में बेहयाई आ रही है। फिर उसके बाद चाल, औरत के चाल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो तो तुम्हारी पाँव की आवाज भी, पाँव में अगर वो पहने हुई हो आज़ेब, तो उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर निकल रही है, खुशबू नहीं हो सकता। ये सब चीजें उसको धीरे धीरे लिपस्टिक पर, फिर ये जो जितनी तरह की चीजें आई है इस पर भी तजमीलात करते हैं, कमालियात करते हैं कि अब ये फैशन की जितनी चीजें आई है जवाब से लेकर के, ये सारी चीजें बेहयाई की दावत बड़े पैमाने पर दे रही है। इसी तरीके से शादी ब्याह में क्या हो रहा है, अब तो ईद के दिन मैं देखता हूँ तो तरह तरह का फैशन है, और किस तरीके से शादी ब्याह में भी अब जिस तरह की फोटोग्राफी है और जिस तरह की बेहयाइयां हैं औरतों में, बच्चियों में, छोटी छोटी बच्चियों को ला रहे हैं, ठीक है बड़ी तो रकाब से ढक लिया, लेकिन छोटी बच्चियों को जैसे ला रहे हैं वो सब हर आदमी, कोई घर बच्चा नहीं है। मार्केट में जो सबसे खूबसूरत लगने वाली चीज है वही है, वो अब मौलाना साहब की बीवी भी खरीद रही है, सब अच्छी सी में है, उसी को लेकर के चल रही है। इलाज क्या है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें और नस्ल इंसानी की बर्बादी से बचने की जतन करें। दीनी तालीम अपने घरों में अगर वो अंग्रेजी तालीम भी हासिल कर रही है तो वो आला से आला वो बेहतर तरीके से उसके घर में तरबियत करें। मसाजिद, जिसको हम लोग कह रहे हैं, देखिए औरत जब तक मस्जिद से बंधी हुई थी दौरे अव्वल की, तो उसके अंदर बेहयाई कभी नहीं। जब से वो मस्जिद से छूट गई तो वो उसको मस्जिद में आ नहीं सकती, तो दूसरी जगह जाने लगी। तो मस्जिदों में दो काम होता है, एक वो खाली अल्लाह के लिए आती है, और दूसरी चीज ये है कि वहां वो आती है तो बहुत निकलने के सारे आदाब सीख लेती है। एक बच्ची है जो कभी बाहर नहीं निकली हो वो निकले, और दूसरी जो निकली हो लेकिन मस्जिद आई, मस्जिद को जाके खुशबू नहीं लगाना है, आवाज किसी की नहीं आनी है। कहीं नागुज़ीर हो गया कि इमाम साहब से गलती हो गई और वहां है वो भी नमाज पीछे पड़ रही है, तो क्या करेगी? अगर कोई नहीं कहा सुभान अल्लाह तो क्या कहेगी वो? ये भाई वो ऐसे करेगी, ऐसे नहीं, जितने में थोड़ा सा वो है ऐसे करेगी, यानी वहां भी उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब ये बताइए, नमाज में सिर्फ निकलने और आने में इतने आदाब सीख गई, तो क्या फिर किसी शादी में निकलेगी, डॉक्टर पढ़ के निकलेगी, किसी निकलेगी तो वो फालतू बात करेगी, कब बनाएगी, फ्रेंड बनाएगी। ये हकीकत ये है कि इन सब चीजों को आदाब को तो हमने मसाजिद को छोड़ दिया, और सबसे बड़े मकतब में हमने देखा अपनी बच्चियों में, जो मकतब में हमारी बच्ची पढ़ कर आई है उसके अंदर कितना ऊंचा सलीका है। यकीन जानिए कि यहाँ आकर के जो मस्जिदों में जाती नहीं है तो वो अच्छे से अच्छे लड़कियों के स्कूल में पढ़ करके उतना सलीका वाली, उतना हया वाली, उस कदर वो मकाम वाली नहीं है। बातचीत में चाहे से करे, चाहे अपने ससुराल में कर रही हो, ताज्जुब होता है और एक तरह की फखर होती है कि ये है। उसके मुकाबले में जिसने ये मस्जिद के आदाब नहीं सीखे, मकसद में नहीं पढ़ी, हम दिल्ली आ गए, हम मॉडर्न में आ गए हैं, बहुत ये हैं, उसी तरह के स्कूल में जाएगी, इसी तरह के मदरसे में जाएगी,
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد میں جو وہ تربیت پاتی ہے مکتب میں جو گھر میں عورتیں آ کر پڑھاتی ہے قرآن، چاہے کوئی قاری پڑھاتے ہیں چھوٹی جب تک ہے پردے میں، آپ نے اس دن حیا اڑا دیا مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر جو پڑھتی ہے اتنی بڑی ہوتے ہی تو سمجھے کہ معاملہ وہ مولانا صاحب اللہ کے ولی ہوں گے، یہ بچی ولی ماں کی بیٹی ہوگی، مولانا صاحب کی بیٹی ہوگی، لیکن آپ نے پردے کی ایک جھجک بے حیائی کی ایک سبب پہلے دن سے سنا، تو اس سے یہ چیزیں بہت زیادہ انتہائی درجے نازک چیزیں ہیں۔ اور کسی حقیقت میں نے جو سنایا ان کا سعودیہ کے اتنے بڑے عالم تھا اور شعور الحرمین کے سب سے بڑے رئیس صدر تھا، تو ایسے ہی نہیں تک وہ امریکہ میں جا کر کے ایسے ہوگی، میں ابھی کیا کو نہیں ملا، لیکن یہاں ایک ہے پورے ہمارے اجن سے بھی لوگ RSS کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک بڑا ہاسپٹل ہے، آپ کو کہاں ہے وہ دہرادون بھیجا تھا، وہ ایک بچی ہے امریکہ میں آتی ہے، دندے میں ہوتا ہے، وہ دوسرے ساتھ اپنے بنوا، میں بتاؤں انہوں نے آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو مسجد میں، مجھے مسجد میں جانے کی مسجد میں بھی جانا چاہیے وہاں سے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جانا چاہیے، اور بچی اگر جمعہ کو چلا جائے گا تو ویسے بھی میں نے بھیجا 1 مہینہ پہلے دیکھ کر کے آتے ہیں، بقیہ وہ کیسے اس ماحول میں رہے گی جہاں میں رہنے والی عورت امریکہ میں رہتی ہے، کہا کہ بقیہ تو اس کا میدان ہے، اور اتفاق سے میں گیا کہ 1 مہینہ رہ کے میرے مہمان ہیں اور ایک دن کیا رہی خبر لینی چاہیے، تھوڑا سا بات ہوگی، کہیں گے کہ مولانا آئے نہیں یا کچھ بھی دن ہوگا، تو میں اچانک پہنچا وہاں، ٹھیک وہ کاؤنٹر میں گئی بچی، میں دیکھا تو جیسے دیکھا تھا میں نے یہاں کیا ویسے ہی دیکھا اس کو دن کرنا، اور تیزی سے وہ سمجھ گئی کہ جا رہے ہیں مولانا صاحب آئے ہیں، تو اس کے بعد وہ تیزی سے بات کی طرف نکل گئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بقیہ وہ جانتی ہے کیا، ایسی تبلیغ ایسی کہ کوئی بھی اس میں سے مریض سے لے کر کے جتنے مرد اور عورت حملہ کام کرنے والے سب سے 1 مہینے میں اتنے مناسب تھے، اور ان کا وہ مشن ہے امریکہ میں بتائیے بڑی کہاں صحیح تربیت کیسے دی انہوں نے، اس لیے میں چھوٹی علاج اللہ کا تقویٰ اور تعلیم کی عورت کے بارے میں مکمل تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو میراث سے لے کر مردوں سے تم کو قرآن کریم کے جو تم کا بتایا جا رہا ہے پوری قانون میں سنسودا ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سارا ہوا، سمجھا کہ نہیں، شروع سے اس کا دماغ بنایا جا رہا ہے کہ ہر لڑکی کو لڑکے کے آدھا ملے گا، اب بات یہ اتنا جائز ہے، خاندان والے گھر والے اتنے جائز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج میں 2 جوڑے کپڑے اپنے بیٹے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو بیٹی کا 1 جوڑا نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا کہ دوہرا بیٹے کو اور بیٹا کس کو بیٹی کو، حرام، اگر آپ 1 روپیہ ہدیہ دے رہے بیٹے کو تو 1 روپیہ بیٹی کو، ایک جوڑے دے رہے کو، 1 فلیٹ اگر بیٹے کو دے رہے ہیں تو زندگی میں دے رہے ہیں تو ایک ہی فلیٹ اسی بیٹی کو بھی دینا، زندگی میں میراث آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ جو تعلیم جب جانتی ہوگی کہ چاہتے ہی شوہر پر پورا میرا پورا خرچ ہے، میں لاکھ روپے کماتی ہوں، تنخواہ میری ہے یا میری تجارت عائشہ کرتی تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کرتی تھی، ازواج مطہرات اور بھی حضرت زینب کرتی تھی اور اسلام کرتی تھی، یہ تجارتیں کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک بھی حصہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 روپیہ اگر آپ کی کمائی تھی تو اس میں ساری بیٹیوں کا حصہ ہوگا، تو ہر بیٹی کا حق کیا ہے، اس کے شوہر سے ملے گا، اور اس کی جو کمائی ہوگی اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں، جس کو پورا خرچ اس کا پورا کس کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ، باپ جب تک زندہ ہے بیٹی کو کہاں مل گیا، اس کے نانیہال سے مل گیا،
उसकी माँ नहीं है, चली गई, तो माँ की जगह पर इसको मिलेगा नानी हाल से ना, इसको दौलत मिल रही है और उसको 5 बीघा मिला है, 5 लाख मिला है, बाप ने 5 लाख देखा भी नहीं कभी, तो वहां तो आपको नजर आ रहा है उसको तो मिल रहा है 1/3 है, दोहरा मिल रहा है। तो ये औरतों का, मुस्लिम औरतों का दिमाग इसका खराब हो रहा है, ये नहीं जानते कि ये पूरी की पूरी दौलत इसको, बेटी को यहाँ इसको मिला है और यहाँ सिर्फ कह रहा है लेकिन पूरा खर्च, एक सूरत है तलाक, समझा, लोग ले जाए की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, कि इसका क्या होगा मुस्तकबिल। एक साथ कहने लगे कि कम से कम शादी इसी घर में करो, हाँ ऐसे घर में करो कि अगर किसी वजह से लड़का नहीं रहा, लड़का की पहली नीयत खराब है, तो कम से कम उसका पास जत्था जमीन कुछ ऐसी हो, ये नहीं, वहाँ ये है कि उसका पूरा खर्च तलाक की सूरत में भी अल्लाह न करे पूरे फायदे पर अगर है, बाप है तो मुकम्मल खर्च को, ये करोड़पति है बीवी तब भी पूरा खर्च उस पर है। लेकिन इस्लाम ने वो कानून सिखाया है, कोई किसी औरत ने आज तक कहा कि दूध पिलाऊंगा तो पैसा लूंगी, कुरान में लिखा है, ये कहा कि आपके बच्चे को पालता हूं तो खाना आप मैं नहीं पकाऊंगी, वो अपना भी पकाती है, आपके मेहमानों का भी पकाती है, आपके घर का, हालांकि आप उसको बाद में शरीयत में ऐसा है कि वो अगर पकाया हुआ खाना तुरंत तो देना चाहिए, लेकिन अखलाक इतना ऊंचा है कि वो उसका कपड़ा धुलने के बजाय आपका कपड़ा होता है। अखलाक से, इस्लाम ने तालीम से ऐसा वादा है कि वो समझती है कि मेरी जन्नत और जहन्नम शौहर के कपड़ा धुलने में, समझती कि नहीं समझती। तो कानून बनाए, कानून लेकर के चलेंगे तो एक दिन नहीं चल सकते, नहीं समझा, आपको चलने नहीं देंगे। तो ये चीज है, और कोई बोझ नहीं, उसके पास पैसा हो या नहीं हो, और उसकी कफालत शौहर के जिम्मे, किसी जमाने में बाप के जिम्मे, किसी जमाने में बेटा बालिग होते ही उसका खर्च बाप कभी भी फर्ज नहीं, बालिग को खत्म, आप ही सब बुढ़ापे तक कमाता रहता है बेटे के लिए, बेटा और पति है तभी चाहता है कुछ और कमाऊं मैं, लेकिन बेटी का मसला ऐसा है कि वो बालिग नहीं, 20 साल की नहीं, 50 साल की है, 70 साल की हो गई, बाप के सामने, तो उसका पूरा खर्च किसके जिम्मे है, बाप के जिम्मे है, भाइयों के जिम्मे है, चचाओं का शौहर नहीं है, खुद उसके बेटे के जिम्मे है, समझा कि नहीं समझा। तो इस तरीके से औरत को बतलाया जा रहा है, मैदान में लाया जा रहा है, बेहयाई की सबक सिखाया जा रहा है, और इस्लाम में तिजारत का, पढ़ने का, लिखने का, जंग में जाने का, सारी चीजों का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जिसको भी पढ़ा दिया, मर्दों को पढ़ा दिया, तो फुक़हाए मदीना के जो नबी के जमाने के फौरन बाद जो सबसे सारे इमामों को इल्म मिला, एक आदमी का इल्म सारे इमामों को मिल गया, बड़े बड़े इमाम हो गए, इमाम बुखारी हो गए, उसमें से इस तरह से मर्द को पढ़ाया, औरतों को जो पढ़ाया था वगैरह को, तो कोई मिसाल नहीं मिली, तो पढ़ाया तो उन्होंने भी, दुनिया के सारे उलूम दिए, अरबी अदब में कहते हैं हमारी बच्ची जामिया में है, अरबी अदब में गई है, अरबी अदब में आप ये क्या करेंगे, वहां पर उस तरह के सब अदीब प्रोफेसर है और सब ऐसे है वैसे हैं, उन्होंने जो अरबी अदब जिसको पढ़ा दिया था आयशा सिद्दीक़ा ने और सहाबियात ने, वो आजकल उसके एक छोटी सी चीज में थीसिस लिख करके भी उसको हकीकत में नहीं समझ पा रहे। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बेहयाई के इतने सारे मज़ाहिर हैं इसको, बल्कि कहना चाहिए कि वो हर तरीके से बेहयाई, औरत को इस तरीके से आजादी के नाम पर बेहयाई कहा गया है। अब तो ट्रक भी वही चला रही है, बस भी वही चला रही है, मर्द को मैं देखा वो बड़े मजे से बैठा हुआ है और औरत चला रही है, गाड़ी चला रही है, बच्चा भी वही संभाल रही है, सारी चीजें बेहयाई की लिबास से लेकर के और आप शर्म हया, ये सब चीजें खत्म है। तो बेहयाई के जितने असबाब हो सकते हैं उन सब का इलाज ये है कि अल्लाह का विश्वास तैयार किया जाए और उस तरह का माहौल बनाया जाए, बच्चियों को उनका किरदार और उनकी सबसे बड़ी चीज
उनको इस्लाम की तालीमात से रोशन कराया जाए, और मर्द को कभी भी बताया जाए कि तुमको भी मर्द की तरफ देखना किसी भी सूरत में जायज नहीं है, इस तरह से मर्दों के लिए औरतों की तरफ देखना जायज नहीं है। सिर्फ एक शादी करने के लिए जवान किसी लड़की को देखना चाहता है तो ऐसी सूरत में वो लड़की का चेहरा देख सकता है, और आप जाकर भाई मैं किसी फलाए मामले से भी आपकी हथेली भी देख सकता है और ये भी देख सकता है, नहीं वो सब सही नहीं है। हकीकत ये है कि वो भी अल्लाह के नबी ने कहा कि बाज चीजें बाज लोग बाज मिजाज ऐसे होते हैं, वरना हया का मसला ये था कि एक जाहिल बाप ने चाहे पढ़े लिखे बाप ने अपने स्मार्ट बेटे को, पढ़े लिखे बेटे को जाहिल लड़की से काली कलौटी शादी की। हया का मसला ऐसा है, और अपनी खूबसूरत बच्ची से शादी किया आपने अजीब तरह की, कभी भी वो उस बच्ची ने इस तरीके से निभाया आप उसका तस्वीर नहीं कर सकते, और हर जगह वो मिसालें मौजूद है। तो तरबियत असल चीज है कि आप अगले दिन से उसको हया की तरबियत दें, सलीका दें, उसको बताएं कि तुम क्या हो। और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कैसी थी, कितने ज़माने तक वो रोती रही अल्लाह ताला से, उन पर कोई जन्नत छीनने की कोई मन नहीं था, और जैसे ही वो लिबास गिरने लगा, खपने लगा जिस्म से, तो वो सबसे ज्यादा उनको ये शिकार थी। इसीलिए औरत कहते हैं कि औरत अगर सही तरबियत हो गई तो आपकी हुक्मरानी सही हो जाएगी। जिस गोद में बाहया औरत के गोद में वो बेहयाई में रुस्तम नहीं ले सकता, जुर्म नहीं डाल सकता। हाकिम बन गया हो, महकूम बन करके रहा हो, प्रोफेसर बन गया हो या ताजिर बना हो, आलिम बना हो या डॉक्टर बना हो, जो कुछ भी बनना है उसको किसी बाहया बागैरत माँ के गोद से बनना है। अगर वो नहीं बन सकी तो दुनिया में कोई बाहया बागैरत ताकत शुजाअत और बहादुरी ईमानदारी वाला आपको हाकिम नहीं मिल सकता, पुलिस नहीं मिल सकता, मर्द नहीं मिल सकता, सवार नहीं मिल सकता। ये जो कुछ डिपेंड करता है उसी औरत को, जग नहीं सकता। इसीलिए औरत को अरबी में कहते हैं माँ को, यानी आपकी जड़ जो है क्या है, जड़ वो औरत, और औरत को औरत का माने सरापा पर्दा। किसी ने पूछा औरत किस चीज का पर्दा करे, तो कहा कि औरत के माने पर्दा, यानी उसकी कोई चीज भला जीनतहुन्ना, उनकी जीनत यानी ऐसी वो पीछे की चोटी ना बांधे जिससे वो उनकी जीनत जाहिर हो, पता चले कि इसके बाल बहुत बड़े, ऐसा भी नहीं, ऐसा चमक दमक वाला वो ना पहने कि जिससे किसी की नजर उसने काफी, समझ रहे हैं। इसलिए खुशबू सख्त मना है, सख्त मना है कि औरत, अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी बददुआ है उस औरत के लिए, और जहन्नम की ये है वो औरत खुशबू लगा। खुशबू कौन देखा है भाई, कौन उसके करीब आता है, लेकिन फिर भी ये है कि वो खुशबू लगा अल्लाह जल्ल शानहू को, और हया वो सबसे ईमान का एक शाख है, और इंसानियत का सबसे बड़ा, औरत का सबसे बड़ा जेवर है, और इंसानियत के अखलाक में सबसे बुलंद दर्जे रखने वाली चीज है। उससे मुज़य्यन होने की तौफीक अता फरमाए।